Okay. In the last lecture, yesterday, we learned introduction of a data structure. We also learned some basic terminologies like data, grouped item, record, file, attribute entity, then field. Also, we learn need of a data structure. Uh, if anybody having a problem, anybody having a query, let me ask. Also, we learn advantages of a data structure and डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन. डेटा स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में हमने कल देखा था कि व्हाट इज दिस, व्हाट अबाउट दिस डायग्राम, व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. आज हम वो थोड़ा डिटेल में देखेंगे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है. Let's see the primitive data structure. Primitive data structure, these are the basic data structure which can be directly operated by the machine instruction. It means no specific algorithm is required. For example, integer, float, character, pointer. You know guys ki there are two things ki integer a is equal to 10. That means what ki we initialize and declare this variable. A को हमने डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज भी कर दिया. द डेटा टाइप ऑफ A इज व्हाट, इंटीजर. दैट मींस व्हाट कि A इज बिलोंग्स टू प्रिमिटिव डेटा टाइप. ओके, why? Because those are directly operated by the machine instruction. There is no need to write any specific algorithm for the same. Okay, and non-primitive data structure means what? These type of derived from the primitive data structure. They are not directly operated by the machine language. यानी ये directly operate नहीं होते with the help of machine language. वो derived करते हैं हम primitive data type से. Just like as a array. एरे क्या होता है? एरे को हम एक्सटेंड करते हैं. इंटीजर a of 5, दैट मींस व्हाट, 5 इज व्हाट, इट इज द साइज ऑफ दैट एरे. एरे का साइज हमने डिफाइन किया, उसको हमने डिराइव किया फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा टाइप. सो इट कैन से दैट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप. ऑल्सो दो एग्जांपल दिया यहाँ कि ग्राफ है, ट्री है. ग्राफ मींस व्हाट, इट इज अ ये अपना क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिसेस. 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल हम देते हैं, ट्री में भी होता है वैसे ही. तो दैट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. ये नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में अभी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिया है और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दिया होगा. तो वो देखते हैं. देखो ए एंड बी, देयर आर टू टाइप्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. तो लीनियर में क्या दिया है अभी देखते हैं. array, first is what, array is a collection of a similar type of a data items and each data item is called as a element of an array. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि इंटीजर a of 5 is equal to 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 is what, those are the decimal values without fractional values. So the data type of 1 2 3 4 5 is what, same. So definition क्या है array का? It is a collection of a homogeneous element. homogeneous बोल सकते हैं, similar बोल सकते हैं, no issue. लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा कि इंटीजर a of 5 is equal to 1 2.2 3.3 4 ABC, तो नहीं चलेगा, because those are the different types of a data and we cannot gather the different types of data in a single or simple array. So array का मतलब समझ में आया कि it is a collection of a similar data type. Okay, then the data type of the element may be valid data like integer, character, float or double. अगर वो वैलिड रहेगा तो ही हम एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. यानी A1, A2, A3 like that अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वी कैनॉट अलाउ देयर. ओके, सब्सक्रिप्शन भी नहीं आएगा, सुपरस्क्रिप्ट भी नहीं आएगा. फिर हम एरे में 1 डायमेंशनल एरे यूज कर सकते, 2 डायमेंशनल यूज कर सकते, मल्टी डायमेंशनल एरे यूज कर सकते. देयर इज नो इशू और हम कर सकते हैं. यहाँ लिंक लिस्ट अब जब सीखेंगे तो लिंक लिस्ट में हम सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट सीखने वाले, तब हम ये एरे का ही यूज करने वाले. ठीक है. सो नेक्स्ट इज व्हाट, लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट इज अ linear data structure which is used to maintain the list in a memory. It can be seen as the collection of a nodes stored at a non-contiguous memory location. Non-contiguous memory location, that is a important thing. Okay, each node of a list contain the pointer to its adjacent node. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए ना तो लिंक लिस्ट इज व्हाट, नथिंग बट एक ट्रेन. ट्रेन में कैसा होता है कि पहला डब्बा जो रहता है वो इंजन रहता है, फिर इंजन को हमारे बाकी के सब डिब्बे या क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं. सेम लिंक लिस्ट भी वही है. लिंक लिस्ट यानी क्या कि हमारे इंजन के आगे का जो डब्बा है, हम बोलते कि
A1, A2, A3, B1, B2, B3 लाइक दैट, ऐसा हम बोलते हैं ना, S1, S2, S3। तो S1, S2, S3 ये जो हमारे कार के नंबर्स है, वैसे या हम क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में लिंक लिस्ट को, नोड्स। तो नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 लाइक दैट। उसका भी याद रखिए, मैंने ट्रेन का एग्जांपल इसीलिए दिया है कि जैसे स्टार्टिंग में हमारा इंजन रहता है, वैसे स्टार्टिंग में इसका भी हेड रहता है, दैट लाइक एज अ इंजन। और लास्ट में आपका क्या रहेगा, नोड ही रहेगा, यानी नोड को पीछे आपको ग्राउंड देना पड़ता है ताकि ये नोड हमारा लास्ट का रहेगा, वो इंडिकेट किया जाता है। वो मैं आपको बताऊंगा जब हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा। लेकिन राइट नाउ फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट की लिंक लिस्ट क्या है कि वन आफ्टर अनदर नोड को कनेक्शन देते हैं हम लाइक एज अ ट्रेन। तो ये होता है अपना लिंक लिस्ट, यानी जस्ट लाइक एज अ चेन। ये हमारा यहाँ मेंटेन किया जाता है यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में with the help of array। then stack is what, stack यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि जस्ट लाइक एज अ सीडी कंटेनर। हैव यू सीन बिफोर सीडी कंटेनर? एक सीडी कंटेनर रहेगा, उसमें हम एक एक सीडी डालते जाएंगे। अगर आपने सीडी कंटेनर नहीं देखा होगा तो आपने बॉक्स तो देखे ही होंगे, बहुत सारे बॉक्सेस है हमारे पास। तो एक बॉक्स हम लेते, एक बॉक्स में, एक पर्टिकुलर बॉक्स में हम अगर बुक्स रखते, एक ही बुक एक ही इसमें बैठेगा, यानी हम वही उसी साइज का बॉक्स लेंगे। तो मान लीजिए कि एक बॉक्स में मैंने 10 बुक्स रखे, वन आफ्टर अनदर। तो अगर मुझे फर्स्ट बुक निकालना होगा तो क्या होगा, मुझे रिमेनिंग ऊपर के 10 बुक्स जो है वो पहले निकालने पड़ेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर? मान लीजिए कि 1 to 10 नंबर्स के मेरे पास बुक्स है। हैरी पॉटर के ये बोलेंगे हम पार्ट्स, ऐसा बोलेंगे। तो 1 to 10 पार्ट जो है, मैंने पहले फर्स्ट पार्ट रखा, फिर सेकंड पार्ट रखा, फिर थर्ड पार्ट रखा, लाइक दैट। ऐसा मैंने 10 पार्ट रखा। द साइज ऑफ बॉक्स इज व्हाट, 10। दैट्स व्हाई हमने 10 बॉक्स रखे, सॉरी 10 बुक्स रखे। तो जब मैं बुक रख रहा था तो फर्स्ट बुक पहले इंटर हुआ, यानी फर्स्ट एंटर हुआ, और लास्ट में वो बुक बाहर निकला। यानी मैं पहला बुक जो इंसर्ट कर रहा हूँ वो बुक मेरा लास्ट में निकल रहा है, और मैं जो लास्ट में बुक एंटर कर रहा हूँ वो मेरा फर्स्ट में निकल रहा है। तो इसी को बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो मैंने 10th नंबर का बुक रखा था वो मेरा क्या हुआ, यहाँ लास्ट में बाहर निकला। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बुक्स का you can just raise your hand or just say yes। हाँ, गुड 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 गुड। सो बॉक्स का कंसेप्ट समझ में आया सब लोगों को कि बॉक्स में हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब बुक्स रखते हैं तो बॉक्स का जो साइज है हमारा 10 का, उतना ही हम रख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैक। ओके, वन आफ्टर अनदर हम इंसर्ट करते जा रहे हैं और वन आफ्टर अनदर हम उसको डिलीट भी करते जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैक। और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ स्टैक का, कि स्टैक में अभी यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है कि स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट इन विच द इंसर्शन एंड डिलीशन आर अलाउड ओनली एट वन एंड। यानी जो हमारा बॉक्स का पूरा साइज है उसमें से हम एक ही जगह से हम इंसर्ट भी कर रहे हैं, एक ही जगह से हम डिलीट भी कर सकते हैं। और जो ऊपर का बुक रहता है मेरा, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक। दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है यहाँ, आप देख सकते हो। मैं यहाँ देखो मेरा कर्सर यहाँ आपको नोटिफाई कर रहा है कि टॉप दिया है। सो अगर मान लीजिए कि मेरे बॉक्स का साइज 10 है तो मैंने 10 बुक्स वहां रखे, लेकिन अगर मैंने ऊपर के 5 बुक्स निकाल दिए तो कितना बुक्स रहेगा मेरा, 5 बुक्स रहेगा। ओके, तो 5 बुक्स में से जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल का बुक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टॉप ऑफ द स्टैक। यानी अगर बॉक्स का साइज 10 भी रहेगा और वो बुक्स में, सॉरी बॉक्स में अगर एक ही बुक रहेगा तो भी वो मेरा टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा। फिर वो 9 रहेगा तो 9th वाला बुक जो है मेरा वो टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा। अगर मैं पानी डालता हूँ, अगर मैं ग्लास में पानी डालता हूँ, 250 ml का मेरा ग्लास है, उसमें मैं पानी डालता हूँ, कितना पानी बैठेगा, ओनली 250 ml, राइट? वाई? बिकॉज की द वॉल्यूम ऑफ अ ग्लास इज ओनली 250 ml। तो मोर देन 250 ml अगर मैं ग्लास में पानी डालता हूँ तो क्या होगा, इट विल बी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो हो जाएगा ग्लास के बाहर। तो उसको एक कंडीशन, स्टैक में 2 कंडीशन रहते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, ओवरफ्लो, सेकंड इज व्हाट, अंडरफ्लो। तो मैं अगर पानी कंटिन्यूअसली इंसर्ट करते जा रहा हूँ, इंसर्ट करते जा रहा हूँ, इंसर्ट करते जा रहा हूँ, और मेरे ग्लास के वॉल्यूम के ऊपर पानी अगर निकल रहा है, दैट मीन्स व्हाट, द वाटर इज व्हाट, ओवरफ्लोइंग। ओके, सो ये कंडीशन है स्टैक का। सेकंड कंडीशन है कि जैसे मैं कंटिन्यूअसली डिलीशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट, कि मैंने ग्लास को टिल्ट कर दिया और उसमें से पानी निकल रहा हूँ। कितना पानी निकलेगा, 1 लीटर, 2 लीटर, 9। जिसका उतना वॉल्यूम है उतना ही अपना ग्लास में से पानी निकलेगा। दैट मीन्स व्हाट, 250 ml
वॉल्यूम हमारा वहां निकल जाएगा। तो मोर देन 250 ml ग्लास के वॉल्यूम से ज्यादा निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। फिर भी मैं उसको टील करके वहां ऐसे झटक रहा हूँ कि पानी निकल जाएगा निकल जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अंडर फ्लो। यानी अगर मेरे बॉक्स में से 10 बुक्स है तो 10 के 10 बुक्स मैंने वहां से रिमूव कर दिया और मैं फिर भी वहां से डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। दैट मीन्स व्हाट? इट इज कॉल्ड एज अंडर फ्लो ऑफ अ स्टैक। Okay, so we are learn here two three things. First is what? Stack of the top. Top means what? कि जो सबसे हायर मोस्ट लेवल पे रहेगा उसको हम टॉप बोलते हैं। 10 का साइज है, अगर 9 बुक्स है तो 9th लेवल पे हम क्या बोलेंगे? टॉप। अंडर फ्लो कंडीशन क्या? कि कंपलसरी हम वहाँ कंटिन्यूअसली डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते जा रहे हैं और पूरा ग्लास हमारा एम्प्टी हो गया, बॉक्स हमारा एम्प्टी हो गया, फिर भी डिलीशन ऑपरेशन चल रहा है, देन अंडर फ्लो कंडीशन विल बी ऑकर्ड। अगर मान लीजिए कि पानी का ग्लास में मैं पानी भर रहा हूँ, कंटिन्यूअसली भर ही रहा हूँ, इंसर्शन कर ही रहा हूँ और मेरा ग्लास कंप्लीट हो गया, फुल भर गया और पानी ओवरफ्लो हो रहा है, इन दैट केस वी कॉल्ड एज अ ओवरफ्लो ऑफ अ स्टैक। जस्ट अ डेफिनेशन पार्ट ऑफ अ स्टैक। समझ में आया? हम आगे सीखने वाले पूरा स्टैक का चैप्टर है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है स्टैक की जो मैंने आपको बताया, जो हमको फिर से रिवाइज करनी है, नो डाउट। नेक्स्ट इज व्हाट? क्यू। क्यू आपको अच्छे से पता है। क्यू क्या होता है कि जहां भी हम लाइन लगाते, लाइन मीन्स व्हाट? टिकट काउंटर। टिकट काउंटर को हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं कि हमने क्यू में यहाँ इंसर्ट हुआ है। तो जो क्यू में फर्स्ट इंसर्ट होगा उसी को टिकट मिलेगा। जैसे सिनेमा हॉल में हम जाते, जैसे बस टिकट के पास जाते, जैसे रेलवे टिकट के काउंटर पे हम जाते, कि जो सबसे पहले लाइन में खड़ा रहेगा उसी को टिकट पहले मिलेगा एंड देन वो बाहर निकलेगा। अभी स्टैक में क्या था? लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में आता था वो फर्स्ट में बाहर निकलता था। लेकिन क्यू में क्या होगा? जो फर्स्ट इंसर्ट होगा वही फर्स्ट आउट भी होगा। ये दोनों भी मेथोडोलॉजी आपको याद रहना चाहिए कि स्टैक में लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है और क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। इट ऑलरेडी मेंशनाइड हियर। ओके, ये देखो यहाँ दिया हुआ है आपको, ये आप पढ़ सकते हो। क्यू इज अ लीनियर लिस्ट विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड ओनली एट अ वन एंड, यानी एक एंड से वो इंसर्ट होंगे और दूसरे एंड से वो बाहर निकलेंगे। जिस एंड से वो इंसर्ट होने वाले हैं उस एंड को बोलते हैं रियर, और जो एंड से वो बाहर निकलने वाले हैं उसको बोलते हैं फ्रंट। फ्रंट एंड रियर बोथ थी। ओके, तो यहाँ भी आपको अंडर फ्लो और ओवरफ्लो कंडीशन मिलेगा। कैसे मिलेगा वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर इसमें बताया तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। देन इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टैक। क्यू इज ओपन एट अ बोथ एंड, देयरफॉर इट allows it follows the first in first out methodology for storing the data item, यानी फर्स्ट जाएगा फर्स्ट आएगा, दैट इज व्हाट क्यू। ओके, सो दोज आर दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या देखा? अभी क्यू देखा, राइट? क्यू के बाद कौन सा देखा था? क्यू के पहले स्टैक देखा था, स्टैक के पहले क्या देखा था? लिंक लिस्ट एंड एरे। दोज आर दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, दोज आर दी चैप्टर्स you have to learn after this chapter. Non-linear data structure में क्या क्या आता है देखते हैं हम अभी। Non-linear data structure means what? There is a no sequential flow one after another। जो हम बोल रहे थे कि स्टैक में और क्यू में होता है वो यहाँ नहीं आता है। ओके, सो यहाँ क्या होता है कि जैसे कल मैंने बताया था कि ट्री में हम क्या करते हैं कि अगर सेम लेवल पे रहेंगे तो हम कोई भी नोड पहले ले सकते हैं, कोई भी नोड बाद में ले सकते हैं, इसलिए ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। सेम एज इट इज ग्राफ, ग्राफ में भी वही होता है। सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या देखते हैं? दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट फॉर्म अ सीक्वेंस, दैट इज each item or each element is connected with two or more other items in a non-linear arrangement. The data element are not arranged in a sequential structure. बाहर का आवाज ज्यादा आ रहा है क्या गाइस? डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे बोलते वक्त बाहर की आवाज का? नो सर। नहीं, नो सर। ओके ओके, देन गुड। हाँ, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स में क्या क्या आते हैं देखते हैं। ट्री इज व्हाट? मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर। मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर मींस व्हाट? कि अभी जो हमने अभी ये ट्री डायग्राम दिखा था, दिस इज व्हाट? दिस इज अ ट्री डायग्राम। ये ट्री डायग्राम में जो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, ये सबसे नीचे वाला जो अपना लेवल है दैट इज कॉल्ड एज अ लेवल जीरो। ओके, सॉरी लेवल, ये लेवल जीरो ये रहता है अपना, सॉरी
डेटा स्ट्रक्चर का ये फर्स्ट वाला जो है दैट इज अ लेवल 0, दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, दिस इज लेवल 3 एंड दिस इज लेवल 4, ऐसे रहता है। तो स्टैटिक, डायनेमिक, ट्री और ग्राफ, इसका लेवल क्या हो गया आपका लेवल 3। तो यहाँ अगर मैं पहले ट्री ना काउंट करते हुए पहले ग्राफ काउंट करूँ फिर बाद में ट्री कॉल करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज बोथ आर दी सेम लेवल पे। ये भी है लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। इसमें अगर मैं फर्स्ट अगर स्टैक बोलता हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोज आर द ना सेम लेवल। इसलिए यहाँ ट्री में नॉन होमोजीनियस भी बोल सकते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो ये सब इसमें आता है। इसमें बहुत सारी आपको नियर अबाउट 20 और मोर देन 20 डेफिनेशन है, जैसे लीफ, लीफ नोड, रूट, रूट नोड, एडजेसेंसी, देन आपके बहुत सारे हैं ऐसा डेफिनेशंस जो हम सीखने वाले हैं। सिंपल सिंपल डेफिनेशंस है एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ये हम देखते हैं ट्री का, वो देखेंगे हम बाद में। अभी उसका भी चैप्टर ही है आपको। लास्ट वन इज व्हाट, ग्राफ। ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ जैसे आपका आपने ग्राफ मैथमेटिक्स में सीखा है फर्स्ट ईयर में, जैसे सेट एंड थ्योरी जो आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स था उसमें आपने ग्राफ सीखा है, सेम ग्राफ आपका यहाँ है, सेम है ग्राफ, कोई फर्क नहीं उसमें और इसमें। और उससे ज्यादा इजीएस्ट वे में है ऐसा मैं बोलूंगा, ये आपको डिटेल्स में नहीं है ग्राफ। ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ अ एलिमेंट रिप्रेजेंट बाय द वर्टाइसेस एंड एजेस। वर्टाइसेस रहेंगे, एजेस रहेंगे। वर्टाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज, फिर वो एज आपका टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, यानी टू वे जाते आते रहेगा, या वन वे रहेगा, उसको डायग्राफ और यूनिग्राफ ऐसे हम बोलते हैं। तो वो देखते हैं बाद में क्या होता है। द ग्राफ इज अ डिफरेंट फ्रॉम ट्री इन द सेंस दैट द ग्राफ कैन हैव द साइकिल वाइल द ट्री कैन नॉट हैव अ इवन, यानी ग्राफ में क्या होता है साइकिल भी हो जाता है। फोर नोड लिए हमने, ए को बी, बी को सी को डी और डी को ए, ऐसा कनेक्ट कर दे। दैट मीन्स व्हाट, इट मेक्स अ साइकिल, इट मेक्स अ लूप। तो ये ऐसा ग्राफ में हो सकता है, लेकिन ट्री में वैसा नहीं होता है। यानी ए से निकलने के बाद मैं वाया डी से फिर से ए तक आ सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ साइकिल ऑफ अ ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ, नॉन साइक्लिक ग्राफ, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स के टाइप्स है, वो भी हम सब देखेंगे। अभी इसी में ऑपरेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर भी आता है। ऑपरेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में ये हमको थर्ड चैप्टर में सीखना है, इसका डिटेल्स में वो देख लेते हैं कि ट्राइवर्सिंग क्या होता है। ऑपरेशन ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर में यहाँ मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट इज व्हाट, ट्राइवर्सिंग। एवरी डेटा स्ट्रक्चर कंटेन द सेट ऑफ अ डेटा एलिमेंट। ट्राइवर्सिंग द डेटा स्ट्रक्चर मीन्स विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन लाइक अ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ट्राइवर्स करना मीन्स व्हाट, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था कि वी हैव 100 balls, out of 100 balls 99 balls having a red color and one ball having a yellow color। तो 99 बॉल में से वो जो येलो वाला बॉल है वो सर्च आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, वहाँ ट्राइवर्सिंग करना पड़ता है। सो मेरे पास दो मेथड्स है जो मैंने नाम शायद से डिस्क्लोज किए होंगे, नहीं किए होंगे। फर्स्ट था मेरा बाइनरी सर्च और सेकंड था मेरा लीनियर सर्च। अगर मैं लीनियर सर्च अगर यूज करता हूँ तो मैं 1 से लेके 100 तक पूरा कंटिन्यूसली वहाँ सर्च करता हूँ, एलिमेंट मिले ना मिले मुझे सर्च करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइवर्सिंग। तो ये ट्राइवर्सिंग करते वक्त जब हम डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एलिमेंट को हम जब विजिट करते हैं, तो एलिमेंट को विजिट करना एक ही बार पॉसिबल होता है, या एक ही बार हम विजिट करते हैं, एक ही बार करते फिर आगे निकल जाते, उसको मोर देन वंस हम वहाँ विजिट नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइवर्सिंग। एग्जाम्पल क्या दिया देखते हैं। इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ मार्क्स obtained by the student in a different 6 different subjects, we need to traverse the complete array of marks and calculate, माइक म्यूट करो किसी का। We need to traverse the complete array of a marks and calculate the total sum. Then we will divide the sum by the numbers of a subject, that is 6, in order to find the average। 6 सब्जेक्ट्स अगर मुझे काउंट करना है, उसका अगर मुझे समीशन निकालना है, उसका अगर मुझे मार्क्स निकालना है, कैलकुलेट करना है सम, तो मैं बार बार उसको विजिट नहीं करूंगा, एक ही बार विजिट करूंगा 6 के 6 सब्जेक्ट को। दैट इज व्हाट ट्राइवर्सिंग। इंसर्शन, insertion can be defined as the process of adding an element to the data structure at any location। any location इसलिए दिया है या मेंशन किया है कि जैसे हमने स्टैक देखा था, तो स्टैक में क्या था, एक ही लोकेशन था कि जहाँ से हम एलिमेंट इंसर्ट करते वहीं से हम एलिमेंट डिलीट भी करते। ओके, सो इंसर्शन इज व्हाट, कि इंसर्टिंग अ एलिमेंट, दैट मीन्स व्हाट, कि एडिंग अ एलिमेंट इन एन array, adding a element in a stack, adding a element in a queue, ऐसा। डिलीशन इज व्हाट,
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। अभी डिलीट करना यानी कैसा, जैसे हमने क्यों देखा था कि मैंने टिकट निकाल लिया काउंटर से तो मैं वहां से क्या हो जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा। दैट मीन्स व्हाट, the element will be deleted from the queue like that. अटेंडेंस ले लो गाइस, अपना स्क्रीनशॉट ले लो। Yes, sir. हाँ, गुड। सर्चिंग टेक्निक, सर्चिंग मीन्स व्हाट, सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग दोनों में डिफरेंस है गाइस। हाँ, सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग में डिफरेंस ये है कि ट्रैवर्सिंग जब हम करते हैं तो नोड को या एलिमेंट को हम एक ही बार विजिट करते हैं, और सर्चिंग टेक्निक में हम मल्टीपल टाइम्स उसको विजिट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हम जा सकते हैं, क्योंकि हमको एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए सर्चिंग टेक्निक में हमारे पास मोर देन वन टेक्निक है। जैसे मैंने बताया था आपको, लीनियर एंड बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में सर्चिंग टेक्निक थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए वो आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, सॉर्टिंग टेक्निक। सो देर आर नियर अबाउट 8 सॉर्टिंग टेक्निक्स इन योर सिलेबस। वो कौन कौन सी है तो यहाँ दिया हुआ है, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ऐसे बहुत सारे यहाँ सॉर्टिंग टेक्निक्स है। सॉर्टिंग टेक्निक मीन सॉर्ट कि मेरे पास 1 to 100 नंबर्स है, लेकिन वो नंबर्स ना तो असेंडिंग है ना तो डिसेंडिंग है, तो मुझे अगर उनको फॉर्मेट करना होगा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो मैं इनमें से कोई एक टेक्निक यूज करता हूँ। अभी ये टेक्निक कौन सा यूज करना है दैट डिपेंड्स ऑन मी, बिकॉज कि एट द टाइम जब प्रोग्रामर कोई टेक्निक यूज करता है तो वो देखता है कि मुझे कौन सा टेक्निक यहाँ बेहतर रहेगा। आपको ऑटो के ऑटो टेक्निक्स यहाँ दिए रहेंगे और उसमें से आपको कोई ना कोई एक टेक्निक यहाँ लेना रहेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि मैं कौन सा टेक्निक लेता हूँ। मैं आपको जो ये टेक्निक सिखाऊंगा तब आपको ये पता चलेगा कि इसमें से हमको कौन सा टेक्निक लेना चाहिए या कौन सा टेक्निक ज्यादातर यूज होता है। वाई, बिकॉज कि इनमें 3 चीजें आती है, जैसे बेस्ट, वर्स्ट और आपने एवरेज, ये तीनों देखा था, आज भी हम देखने वाले हैं। तो ये तीनों में से कौन सी टेक्निक अच्छी है कौन सी टेक्निक नहीं है वो यहाँ हमको पता चलने वाला है सॉर्टिंग में। सॉर्टिंग मीन्स व्हाट, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा स्ट्रक्चर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर नोन एज अ सॉर्टिंग। ओके, मर्जिंग, मर्जिंग मीन्स व्हाट कि जैसे डिवाइड करते और उसके बाद हम कॉन्कर करते, तो कॉन्कर मीन्स व्हाट, मर्ज करना। यानी मेरे पास 2 एरे है, एरे ए एंड एरे बी, हम दोनों को क्या कर रहे हैं यहाँ, कनेक्ट कर रहे हैं। तो कनेक्ट करने के मेथड को क्या बोलेंगे हम, मर्ज करना। और मर्ज करके उन दोनों को हम फिर से तीसरे एरे को असाइन करेंगे, यानी ए को बी को, ये दोनों को कनेक्ट किया और उनको असाइन किया सी को। दैट मीन्स ए इज इंडिविजुअल था, बी इज इंडिविजुअल था, और उन दोनों को कनेक्ट करने के बाद सी में आ गया, तो सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी ऑल्सो, सो दैट इज कॉल्ड एज अ मर्जिंग। तो ये मर्ज सॉर्ट भी हम सीखने वाले हैं। इनफैक्ट क्विक सॉर्ट जो है हमारा, उसमें भी हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर ही करते हैं। जैसे हम कुछ स्प्लिट करेंगे एरे को, उसके बाद हम उसको फिर से मर्ज करेंगे, लाइक दैट, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखेंगे थर्ड चैप्टर में। अभी अभी तो हमको इंट्रोडक्टरी पार्ट है। नेक्स्ट इज व्हाट, एल्गोरिदम। मैंने लास्ट लेक्चर को आपको बताया था कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी राइट विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर। यानी अगर मुझे प्रोग्राम भी लिखना होगा तो मुझे उसका फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम उसका क्या करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे। और ये कंपलसरी ही रहता है। जब आप कंपनी में ज्वाइन होगे तो ज्वाइन होने के बाद आपको पहले ये चीजें ही सिखाई जाएंगी, ये चीजें ही करनी पड़ेगी। बिकॉज कि जब भी हम कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, और विदाउट ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्चर के थ्रू हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, विदाउट ब्लूप्रिंट हम वहाँ उसको खड़ा नहीं कर सकते। वैसे हमारा प्रोग्राम का फ्लो रहता है कि प्रोग्राम का फ्लो अगर पहले पेन एंड पेपर के थ्रू अगर नहीं बनाया गया, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग योर प्रोग्राम इट विल शोज अ लॉट ऑफ एरर्स, और एरर के बाद भी हमारा प्रोग्राम फुल प्रूफ नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पेन एंड पेपर के थ्रू पहले फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम्स ड्रॉ आउट करने पड़ते हैं। सो व्हाट इज एल्गोरिदम? एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर हैविंग द वेल डिफाइंड स्टेप फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Algorithm is a finite set of a logic or an instruction. Yes, this is the most important thing. Finite set of a logic. Finite अगर नहीं रहेगा तो infinite loop में चला जाएगा. That means what कि आपके प्रोग्राम का लॉजिक अगर गलत है तो फिर आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। अगर आपने लिखते वक्त, अल्गोरिदम लिखते वक्त अगर ऐसा नहीं लिखा तो फिर आपका प्रोग्रामिंग करते वक्त आपका आउटपुट आपको एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगा। ओके, so algorithm is a finite set of logic or instruction written in order for accomplish the certain
predefined task. It is not the complete program or code. It is just a solution or logic of a problem which can be represented either as an informal description using the flowchart or best to code. Informal description, that is important. जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि एल्गोरिदम का टेक्निक लिखते वक्त आपको प्रॉपर इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यस, आप जब वो लेवल पे पहुंचेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल राइट, बट राइट नाउ आपको आपके यूजर लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे ए को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, रीड ए, दैट इज अ टेक्निकल वर्ड। अगर मुझे रीड ए नहीं लिखने आता है तो मैं क्या लिखूंगा, डिक्लेयर द वेरिएबल ए। ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इनपुट द वेरिएबल ए, लाइक दैट। 3 मैंने अभी आपको सेंटेंसेस बता दिए और उसका इनपुट मैं जो दे रहा हूँ वो सेम ही है, अलग अलग, सॉरी इनपुट दे रहा हूँ वो अलग अलग है लेकिन आउटपुट क्या है, सेम है, यानी मुझे ए को डिक्लेयर करना है, दैट्स इट। तो यूजर लैंग्वेज में आपको लिखना है। सो इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन यूजिंग अ फ्लो चार्ट एंड पेज टू कोड, जिससे हम ये एल्गोरिदम ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके कुछ कैटेगरीज है, जो कैटेगरीज हमको पता होनी चाहिए। Major categories of algorithm are given below, that is a sort, search, delete, insert and update. ऑलरेडी हमने ऊपर डेफिनेशन देखा है, वो डेफिनेशन में आता है। लेकिन गाइस अल्गोरिदम लिखते वक्त कुछ चीजें हैं कि जो हमको लगती है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। वो चीजें हैं, देखो, इट इज ऑल्सो से एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एल्गोरिदम। फर्स्ट इज व्हाट, इनपुट। अगर मान लीजिए कि मैंने इनपुट गलत दिया है तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या रहेगा, गलत आएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 4 आउटपुट आना चाहिए 2 वेरिएबल्स का, तो मैं कॉम्बिनेशन क्या दे सकता हूँ, 4+0, 3+1, 2+2, लाइक दैट, ऐसा कुछ तो भी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने 5+1 आउट इनपुट दे दिया तो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आएगा, 6 आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि मेरा इनपुट सही होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट। ऑल एल्गोरिदम मस्ट हैव some inputs, कुछ ना कुछ इनपुट्स रहेगा, ओके। एंड द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम ऑपरेट्स ऑन दैट इनपुट टू प्रोड्यूस द डिजायर रिजल्ट। जो भी लॉजिक है वो उसके रिलेवेंट ही होना चाहिए, तभी जाके आपको डिजायर आउटपुट प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और इनपुट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, आउटपुट। आउटपुट क्या करता है, आफ्टर प्रोसेसिंग स्टेप बाय स्टेप द एल्गोरिथम मस्ट गिव सम रिजल्ट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होने के बाद एल्गोरिथम क्या करेगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करेगा। एटलीस्ट वन आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस ऑन अ गिवन इनपुट। अगर एक भी आउटपुट आपका नहीं आया तो आउटपुट का फायदा ही नहीं है।